Page 31. Why the way is very difficult and why the adverse forces are allowed to harass one. इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा तो इसके मीनिंग की अर्थ की तो ज़रूरत नहीं है, सारे इसमें तो वेल वर्स्ड हैं, कहीं होगा तो वो बता देंगे. Why the adverse forces have the right to interfere, to harass one. But this is precisely the test necessary for your sincerity. If the way were very easy, everybody would start on the way, and if one could reach the goal without any obstacle and without any effort, everybody would reach the goal. And when one has come to the end, the situation would be the same as when one started. There would be no change. That is, the new world would be exactly what the old has been. It is truly not worth the trouble. Evidently, a process of elimination is necessary so that only what is capable of manifesting the new life remains. This is the region, and there is no other. This is the best of regions. और बहुत से कारण हो सकते हैं, पर ये बेस्ट कारण है कि जो एडवर्स फोर्सेज है उनको क्यों अलाउ किया गया है. नहीं तो व्यक्ति ये कहे कि दिव्य विधान के अंदर ऐसी चीजें क्यों हैं, तो उनका एक एक्सप्लेनेशन, जो सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन ये है कि यदि ये हर्डल्स नहीं होती या ये चैलेंजेस नहीं होते, इस तरीके की ऑब्स्टिकल्स नहीं होती, तो आप जैसे हैं वैसे के वैसे ही अपने गंतव्य के ऊपर पहुंच जाते, तो आप तो वो ही रहते. तो फिर फायदा क्या हुआ. जो नया जो जगत है would be exactly what the old has been. तो जैसे पुराना जगत रहा है वैसे ही नया जगत होता, तो उसमें अंतर क्या होता. तो इसीलिए इनको सफर किया जाता है, इनको अलाउ किया जाता है. And you see, it is a tempering, it is the ordeal of fire. Only that which can stand it remains absolutely pure. और जो इस अग्नि के अंदर से सही सलामत निकलता है, वो तो एक ऐसी प्योर चीज है जो इसमें से निकल पाएगी. जो इम्प्योरिटीज है वो इसमें भस्मीभूत हो जाएंगी. When everything has burnt down, there remains only the little ingot of pure gold. प्योर गोल्ड इसके अंदर बचता है, बाकी जितना भी है उस अग्नि के अंदर वो भस्म हो जाता है. And it is like that. What puts things out very much in all this is the religious idea of fault, sin, redemption. इसमें जो जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है या जो बहुत ज्यादा उसको एग्जाजरेटेड रूप दे देता है, वो रिलीजियस आइडिया है. ये आपकी फॉल्ट है, ये आपने पाप कर दिया, इस पाप का विमोचन करना पड़ेगा, आपने ये काम किया तो आपको इसका परिणाम मिलेगा. ये पूरी जितनी भी जिस तरीके की साइक्लो ये जो है हमको सुनने आती है, ये सारी चीजें, इन सारों के कारण इसमें बड़ी एक समस्या आ जाती है. बट देर इज नो आर्बिट्रेरी डिसीजन. कोई ऐसा आर्बिट्रेरी डिसीजन नहीं होता. ऑन द कॉन्ट्ररी, फॉर ईच वन इट इज द बेस्ट एंड मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस which are given. We were saying the other day that it is only his friends whom God treats with severity. You thought it was a joke, but it is true. पर ये बात बिल्कुल सही है कि जिनको परमात्मा प्रेम करते हैं, only his friends whom God treats with severity. It is only to those who are full of hope, who will pass through this purifying flame, that the conditions for attaining the maximum result are given. And the human mind is made in such a way that you may test this. When something extremely unpleasant happens to you, you may tell yourself, well, this proves I am worth the trouble of being given this difficulty. This proves there is something in me which can resist the difficulty. And you will notice that instead of tormenting yourself, you rejoice. You will be so happy and so strong that even the most unpleasant things will seem to you quite charming.
This is a very easy experiment to make, whatever the circumstances. भैया पेज कितना है? 31, अभी 32 है। 31, 32। This is a very easy experiment to make, whatever the circumstance. If your mind is accustomed to look at it as something favorable, it will no longer be unpleasant for you. This is quite well known. As long as the mind refuses to accept a thing, struggles against it, tries to obstruct it, there are torments, difficulties, storms, inner struggles, and all suffering. But the minute the mind says, good, this is what has to come, it is thus that it must happen. Whatever happens, you are content. There are people who have acquired such control of their mind over their body that they feel nothing. I told you this the other day about certain mystics. If they think the suffering inflicted upon them is going to help them cross the stages in a moment and give them a sort of stepping stone to attain the realization, the goal they have put before them, union with the divine, they no longer feel the suffering at all. अगर ये भाव ले लेता है माइंड, तो उसका जो रूप है, उसका जो स्वरूप है, आप जो सफर कर रहे हैं, वो वैसा नहीं रहता। आप अगर ये समझ जाएंगे कि आपको कोई बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है इस यात्रा के अंत में, तो कितनी भी पीड़ादायक हो वो आपको वैसी नजर नहीं आती, और आप बहुत रेडिली पुट अप विथ करते हो सारी चीज से। और कितनी भी सुखद आपकी परिस्थितियां बाहर हो, पर आपको उसका परिणाम आप जानते हैं कि भी ये बड़ा तकलीफदायक हो सकता है, तो वो जो सुखद काल भी आपको, या जो सो कॉल्ड सुखद है, वो भी वैसा नजर नहीं आता। Their bodies, as it were, galvanized by the mental conception. This has happened very often. It is a very common experience among those who truly have enthusiasm. जिनके अंदर कुछ करने की ललक है, enthusiasm है, उनका एक सामान्य अनुभव है ये जो माँ बता रही है। And after all, if one must, for some reason or other, leave one's body and take a new one, is it not better to make of one's death something magnificent, joyful, enthusiastic, than to make it a disgusting defeat? और अगर आप कोई ऐसा अभियान लेते हैं जिसके अंदर आप मृत्यु का वर्ण कर रहे हैं, तो माँ कह रही है, क्या आप यूं ही एक डिस्गस्टिंग डिफीट के रूप में मृत्यु का वर्ण करते? क्या उसकी बजाय ये श्रेयस्कर नहीं है कि आप इस तरीके का वर्ण करें? Those who cling on, who try by every possible means to delay the end, even by a minute or two, who give you an example of frightful anguish, show that they are not conscious of their soul. After all, it is perhaps a means, isn't it? One can change this accident into a means. If one is conscious, one can make a beautiful thing of it, a very beautiful thing, as of everything. हर कुछ, सभी कुछ का आप most beautiful बना सकते हो. And note, those who do not fear it, who are not anxious, who can die without any sordidness, are those who never think about it, who are not haunted all the time by this horror facing them, which they must escape and which they try to push as far away from them as they can. सारा प्रयास इस हॉरर का है, सारा जितना भी प्रयास है, आप अगर बारीकी से देखेंगे ये एक हॉरर है। और वो हॉरर क्यों रह जाता है आपके लिए जीवन? क्योंकि अभी तक आपको कोई डीपर वैल्यूज नजर नहीं आई, इसलिए आप उसको फेस नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतना हॉरिबल है। और जितने भी आप जो विश्व में काम देख रहे हैं जिस तरीके के, जिनको ये टच मिल गया है डीपर, उनको ये हॉरर इस तरीके का नहीं है।
These, when the occasion comes, can lift their head, smile, and say, "Here I am." It is they who have the will to make the best possible use of their life. It is they who say, "I shall remain here as long as it is necessary, to the last second, and I shall not lose one moment to realize my goal." These, when the necessity comes, put up the best show. Why? It is very simple. Because they live in their ideal. उनके एक आदर्श है, वो एक आदर्श के अंदर निवास करते हैं, उसमें जीते हैं। जैसे ही आप एक गोल लेते हैं, आप कोई उद्देश्य लेते हैं, द टेक्सचर ऑफ योर लाइफ चेंजेस। आपका पूरा जीवन, कोई भी गोल जैसे ही आप लेते हैं, आपके जीवन का टेक्सचर चेंज हो जाता है। This region of existence, and never do they come down into the sordidness of material life. और मटेरियल लाइफ की जो भद्दापना है, उसकी सॉर्डिडनेस है, कभी उस स्तर के ऊपर नहीं उतर के आते। इसीलिए हर किसी के लिए यह आवश्यक है कि जीवन में कोई उसके गोल तो हो, उसने अपने सामने कोई अपना उद्देश्य रखा हो। सो द कंक्लूजन, वन मस्ट नेवर विश फॉर डेथ, वन मस्ट नेवर विल टू डाई, वन मस्ट नेवर बी अफ्रेड टू डाई, एंड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस वन मस्ट विल टू एक्सीड वन सेल्फ। अब ये तुरंत के अंदर अभी तो विश फॉर डेथ तो ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक इन द सेंस, जितना भी डिफीटिज्म है कि जीवन में कोई अच्छा हम कर नहीं सकते, या हम क्या अच्छे के लिए एस्पायर करें, तो बेसिकली अंदर से कोई चीज है वो हमेशा ही लुक फॉरवर्ड टू क्या करती है कि इसका अंत होगा। या आप अच्छे की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं, तो आपके जाने अनजाने, चाहे ना चाहे, वो तो वैसा ही होना है। पर इसमें मूल अगर शुरू से अपन शुरू करें, पहले तो एक एक विचार इसको लेना शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से इसके अर्थ में तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं। इसका जो मीनिंग है, यो अगर उसका भावार्थ लिया जाए कि वास्तव में उसके डीपर उसमें क्या चीज इंप्लाइड है, वो बहुत ज्यादा प्रोफाउंड है और वो अनुभव के बिना हो नहीं सकती। इनफैक्ट जैसे ये कह रहे हैं कि इफ द वे वर इजी, कौन से वे की बात कर रहे हैं? ये तामसिक व्यक्ति के लिए कह रहे हैं क्या? उसके लिए तो अपना पेट पालना भी बड़ा मुश्किल रहता है। किस वे की बात कर रहे हैं? Everybody would start on the way, and if one could reach the goal without any obstacle, पहले तो गोल ही नहीं है। अपन किस कॉन्टेक्स्ट में, किस उसमें ये समझें इस चीज को, ये कहना क्या चाह रही है माता जी? हाँ जी कीर्ति दीदी, इसमें जो शुरू में ही है ये, इफ द वे वर इजी, बात ठीक है, पर ये तो सामान्यतः होता ही नहीं। इनफैक्ट ये, क्या हम इस विषय में सोचते हैं इस तरीके से, या इस बारे में हम कैसे लें इस सारी चीज को? यहाँ पे तो वे डिवाइन की तरफ जाने का ही है ना, टूवर्ड्स, when we move towards the, want to move towards the in spiritual path से होके डिवाइन की तरफ, that way is not easy. कोई भी आइडियल आपने अपने सामने रखा, आइडियल तो होने का मतलब यही है ना, आदर्श। आपका आदर्श बेसिकली कोई ऐसी सत्ता है जिसने कोई चीज देखी है और उसकी तरफ मूव करना चाहता है। आदर्श उसको तो हम जनरली नहीं कहेंगे, हालांकि लोग कहते हैं ये मेरा आदर्श है, इसके इतने पैसे हैं, या इतना ये है, इतना ये व्यक्ति सफल है अपने जीवन में, या ये फिल्म स्टार है। अपने आदर्श जो लोग जनरली जो रखते हैं, ये कोई फिल्म स्टार है या फिर कोई पॉलिटिशियन है, वैसे आदर्श की नहीं। आपकी जो नेचर है वो मूव्ड है कोई चीज से, कोई एक्ट ऑफ सेक्रीफाइस आपने देखा, कोई अनसेल्फिश एक्ट आपने देखा, या कोई ऐसी चीज आपने देखी, आप मूव्ड हो, आपने एक आदर्श लिया, सत्यवादिता का आदर्श ले लिया, तो उसकी परिणति के अंदर वहां तक मूव आप जब करते हो, अरे आदर्श का तो मतलब ही यही है कि समथिंग अनरियलाइज्ड फॉर यू, अभी आपके लिए एक ऐसी चीज है जो आपको रियलाइज करनी है। और वो आदर्श अगर आपने ऐसा रखा कि भाई मैं अपने सामने ये आदर्श रखता हूं जो ऐसा है कि 4 कदम रखते ही वो मैंने फुलफिल कर लिया, तब तो देखो कोई उस आदर्श की बात नहीं है। पर आपने अपना सच्चा कोई आदर्श, जितना ही विशाल आदर्श आपने रखा,
पहले तो आदर्श आदमी किस चीज से मूव होता है, कौन सी चीज है जो वास्तव में हम कहें कि भाई ये है, और फिर उसका मार्ग, मार्ग मतलब वे, उसको उसकी तरफ मूव करने का। और अगर वो सहज या सरल होता और उसमें ऑब्स्टेकल्स आती हैं, तो ये सारे को हम अगर वास्तव में खोलें, हम खोलना चाह रहे हैं इस सारी बात को। हाँ जी कीर्ति दीदी। मुझे यही समझ आ रहा है कि जो भी हमारा आदर्श हो उस पे चल के, माँ कह रही है अगर तुम सहजता से पहुंच जाओगे तो उसमें नया क्या होगा, क्योंकि ये तो नए संरचना होनी है। तो उसके लिए जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, वो जैसे मंथन होता है समुद्र में, ऊपर सारा आता है फिर उसको साफ किया जाता है, तब वो पानी यूजफुल होता है। इसी प्रकार जब हम चल रहे हैं उस रास्ते पे, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो हमें अपने अंदर देखना है कि क्या चीज निकालनी है, क्या रखनी है, और फिर आगे बढ़ना है, ताकि हम उस नई संरचना के संरचना रचना होने वाली है उसका हिस्सा बन सकें। क्योंकि पुराना ही वापस आना है तो क्या फायदा। आप ये ऑब्स्टेकल आती कैसे है, ये तो ऑब्स्टेकल आप को कैसे देखें? देखिए, अब सपोज जैसे आप उदाहरण दे रहे थे, मुझे बहुत ही मंडेन अगर लें, अगर मुझे क्लास 11th में जाना है और मुझे पढ़ाई करनी है, वो पढ़ाई करने में कितने प्रकार से ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। मैं एक स्तर पे बता रही हूँ, आप कह रहे हैं ना कैसे आ सकते हैं, वो तो बहुत डिटेल हो जाएगा ना, कई कारण हो सकते हैं उसके। मेरा अपना तमस, आसुरिक डिसर्नमेंट की कमी मेरे अंदर, कि कब मुझे क्या स्टेप लेना है, कहाँ से गाइडेंस लेनी है, क्या चीज नहीं करनी है, क्या चीज करनी है। मेरी समझ में तो यही है। स्नेहा। हाँ हाँ भैया। हम्म। भैया इस तरह क्राफ्ट में तो मुझे जो भी कीर्ति दीदी बोल रही थी, तो इसमें भी मुझे भी यही समझ में आया कि बार बार जो एक मदर न्यूनेस की बात करती है, एक एडवेंचर की बात करती है, कोई भी चीज हमें जो भी प्राप्त करना है या जो भी चीज हम चाहते हैं वो होना, तो अगर वो चीज हमें बहुत इजीली या बहुत एकदम यूं ही स्पॉन्टेनियसली कोई चीज मिल जाए तो उसकी हमें वैल्यू भी नहीं होती है। और फिर उसके अंदर कुछ मतलब बोलते हैं ना कि उसमें प्रोग्रेस भी नहीं हो सकती है। प्रोग्रेस भी तभी होगी जब जो चीज हमें चाहिए मतलब उस वो जो रास्ता है वहां तक पहुंचने का, वो कठिनाइयों से होकर के ही गुजरता है, क्योंकि बिल्कुल से आसान तो कोई चीज भी नहीं है। चाहे वो व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी चीज, जैसे अभी आप शुरू कर रहे थे तो उससे बोले कि ये बात माँ किसके लिए कर रही है, तामसिक व्यक्ति के लिए या किस तरीके के मतलब नेचर के व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। तो हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो तामसिक स्टेज पे हो, चाहे वो राजसिक स्टेज पे हो, सात्विक स्टेज पे हो, सबका अपना अपना एक डिफरेंट डिफरेंट गोल है। लेकिन हर उसको, अगर वो एक तामसिक व्यक्ति है तो जैसे उसके लिए अपने भोजन के लिए भी उसको, वो जिस रास्ते से जाएगा वो बहुत आसानी से उस चीज को नहीं पाएगा। उसके लिए भी उसे बहुत मतलब शरीर से परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब वो काम कर पाएगा। तो हर व्यक्ति, तब वो उसकी, उस व्यक्ति को उस चीज की कीमत भी होती है। और वो तब वो अपने ऊपर बोल सकते हैं कि वो धीरे धीरे वो फिजिकली, जैसे अगर वो मेहनत कर रहा है तो फिजिकली स्ट्रांग हो रहा है, या फिर जो व्यक्ति राजसिक स्टेज पे है तो वो उस मतलब जो भी वो उसके सामने जो गोल है, चाहे वो एक राजसिक व्यक्ति के क्या गुण होते हैं, मतलब वो बहुत अपना नाम ख्याति और ये सब के पीछे भागता है, तो वो उसके लिए जो उसको परिश्रम करना है, उसको वो उस परिश्रम में वो मतलब व्यक्ति जो है वो उसको उसमें आनंद आता है। और फिर वो चाहे वो कोई भी तरह की परेशानी हो, उसको उस लक्ष्य तक पहुंचने में वो बहुत मजे में, मतलब वो उस परेशानी को बड़ा इंजॉय भी करता है। उसको लगता नहीं है कि मैं बहुत कष्ट में हूँ, क्योंकि उसको अपना, उसको एक गोल दिख रहा है, और जब वो उस चीज को अचीव करता है
तो उसको बहुत उसमें खुशी मिलती है। तो शायद माँ यही कह रही है कि हमको अगर कोई भी चीज बहुत ही आसानी से मिल जाती है तो उसकी फिर वैल्यू या उसमें फिर एक नयापन नहीं रहता है। हाँ, पर इसके अंदर देखो एक चीज अपन ये सोचें भाई, आश्रम के कॉन्टेक्स्ट के अंदर सोचो एक बार इसको। व्यक्ति माताजी के पास आ गया और वो आश्रम के एटमॉस्फेयर के अंदर रह रहा है। अब उसका जो भी उसने गोल लिया होगा मान लीजिए, अब उसके सामने विदाउट एनी एफर्ट, अब हम कहें गोल, एक एथलीट का हमको सामने दिख जाएगा, इसने जबरदस्त मेहनत करी है। एक पॉलिटिशियन का हमको दिख सकता है कि इतनी रात दिन और इतने बरसों तक इसने मेहनत करी है। जिसका फिजिकल हमको मैनिफेस्टेशन नजर आ जाए, वो चीज तो हम कह देंगे कि इसने इतने बरसों, ओरोविल के अंदर पहले इतने डिग्री टेम्परेचर हाई रहता था, अब धीरे धीरे जो है पौंडीचेरी से वहां में टेम्परेचर में, क्योंकि इतने लाख पेड़ एक्स्ट्रा लगा दिए गए, वो चीज तो हमको नजर आ गई। तो हम कह देते हैं कि जबरदस्त एफर्ट लगा इसके अंदर। पर ऐसा जो भी मैनिफेस्टेशन है, उसका जो रिजल्ट है, उससे कहीं बड़ा रिजल्ट वास्तव में जिस चीज की ये मांग कर रही हैं, क्योंकि नई दुनिया की अगर बात कर रही हैं तो नई दुनिया का मतलब क्या? अगर ये कह रहे हैं नया वर्ल्ड अगर आएगा तो वो पुराने वाला ही रह जाए। अगर आपका वैसा का अभी जैसा है, बिना मेहनत के आपको मिल जाए, तो नया जो वर्ल्ड है उसका मतलब भी क्या हुआ? पर हम तो ये पूछ रहे हैं कि नया वर्ल्ड एक्चुअल में उसका वास्तव में मतलब क्या है? क्या हो जाएगा नए के अंदर? इससे आप क्या समझते हैं? विदाउट एनी एफर्ट। और उसके लिए आप जो एफर्ट करेंगे उससे बाहर क्रिएट होगा, अंदर होगा, ऑब्स्टेकल्स होंगी। वो हर जने को तो वो ही वातावरण में, उसी परिवेश में वो ऑब्स्टेकल्स भी नहीं आती। तो जो ऑब्स्टेकल शब्द है वो कैसा है, आती क्यों है, गोल क्या है, वास्तव में वो क्या निर्धारण है उस गोल का? एफर्ट का मतलब क्या हुआ भाई? आश्रम का जो वातावरण है उसके अंदर आप क्या सोचते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है, जो बोझा उठाता है सारे दिन, या कितने लोग हैं उनको 20-20 घंटे, 18 घंटे, 14 घंटे ड्राइविंग करनी पड़ती है। कितना कितना मेहनत का काम आप देखते हैं। इवन टीवी के ऊपर जो रियलिटी शोज आते हैं, कितनी मेहनत रात रात भर वो लग के उसमें करते हैं। फिल्म्स बनती है, उसमें कितनी मेहनत लगती है। क्या ये उस एफर्ट की बात चल रही है? और ये इतने बरसों से एफर्ट चल रहा है तो भी क्या ये एक नया जगत हो गया? ये उसमें भी ऑब्स्टेकल्स आती हैं। ऑब्स्टेकल्स किसके नहीं है? आप भोजन करते हैं सुचारू रूप से, वो उसकी प्रक्रिया पचने की है, उसकी निष्कासन की है, वो सारी प्रक्रियाएं हो जाए, यही आज के परिवेश में या आज का जिस तरीके का सिस्टम है उसमें यही होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये जिस स्तर पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड हमको लग रहा है, हम तो शाब्दिक अर्थ कर रहे हैं इसका कि बिना एफर्ट किए और अगर बिना ऑब्स्टिकल्स के हम गोल तक पहुंच जाएं। कौन सा गोल, कैसा गोल? डिवाइन हमको मिल गए, इसका वैसे मतलब क्या हुआ? वन कुड रीच द गोल। जैसे कीर्ति दी कह रही थी कि भी ये स्पिरिचुअल गोल है, तो उसमें मिल क्या जाता है? और न्यू वर्ल्ड की बात करें तो बाहर क्या चेंज हो जाता है? गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, पर्यावरण चेंज हो जाता है, क्या चेंज हो जाता है भाई? अपनी डिवोशन है, अपना फेथ है मदर श्री अरबिंदो के प्रति, तो हम कहते हैं एक नया जगत, या जितने लोगों का अपने तरीके से नए जगत का कंसेप्शन होता होगा। माँ और श्री अरविंद किस जगत के अंदर निवास कर रहे थे? पर एक सामान्य व्यक्ति को वहां ले जाओगे तो यार तुम ज्यादा कर रहे हो, ये तो तुम तो इनको देवत्वीकरण कर रहे हो, इनका इनको आप वैसे ठीक है, अच्छी बात है, पर यहां भी बाहरी रूप से देखा जाए, इन्होंने सब जगह है, सबके अपने सेल्स काउंटर है, इन्होंने बुक्स डिवीजन बना रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। कौन सा ऐसा आश्रम है जिसके अंदर ये न किया जा रहा हो? इनफैक्ट बहुत ज्यादा भी किया जा रहा होगा कई आश्रमों में। तो हम जब डीपली इस विषय में सोचें तो कौन सा तो नया जगत है? गोल की जब बात करें, क्या गोल है, ये लागू किसके ऊपर हो रहा है?
क्योंकि सामान्य जीवन के अंदर तो बहुत जबरदस्त रूप से मेहनत करते हैं, हम देखते हैं लोगों को, जो भी संसिद्ध करता है, फिर कह रहे हैं नया जगत, तो फिर बाद में कोई पहाड़ तोड़ देता है या फिर कोई बहुत बड़ा कोई मेंशन तैयार कर देता है, कोई जबरदस्त परिवर्तन ले आता है, तो वो क्या ये नए जगत की, कौन से नए जगत की? तो किस पर्सपेक्टिव में लें इस सारे को, कीर्ति दीदी? नया जगत वो कहते हैं, मुझे लगता है जो वो कहती है ना उनके शब्दों में, सत्य पर आधारित। अब सत्य कौन सा? अपने आप से जुड़ने का, अपने अंदर के जो जो वो दिव्य रूप है उससे जुड़ना। ये जो आप बातें कर रहे थे, मेरे हिसाब से वो तो बाहरी स्ट्रक्चर्स है ना सब। किसी भी आश्रम में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुक शॉप, उसमें तो दूसरी चीज हो गई। मुझे तो लगता है ये आंतरिक बदलाव या आंतरिक चीजों की बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लक्ष्य तक। ठीक बात है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा था, मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई भी आश्रम को कोई सामान्य व्यक्ति जाके देखेगा तो वो कैसे उसका वर्णन करेगा? आपने तो कहा कि एक नया जगत, श्री अरविंद और माँ जिस जगत में रह रहे थे, पर उस जगत का कुछ हमको फोरटेस्ट, कुछ थोड़ा बहुत अगर मिल सके तो उसके लिए सामान्य स्तर के ऊपर तो नहीं मिल सकता। उसके लिए हमको भी एक दूसरे स्तर के ऊपर जाके ये समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि वो बात क्या कर रहे थे। अगर वो एक नए जगत की बात कर रहे थे तो वहां पौंडीचेरी में तो नया जगत बाहरी रूप से तो कोई यही कहेगा ना कि वैसे ही तो बुक डिवीजन चल रहा है, वैसे ही इनके अलग अलग डिपार्टमेंट चल रहे हैं, अगरबत्ती का है और है, और वहां जाके तो कोई भी ये नहीं कह सकता, वो कहे यार जिस जैसे सामान्य व्यापार चल रहा है ये तो उससे भी ज्यादा व्यापार कर रहे हैं। उनकी तो प्राइसेज हैं या जिस तरीके का सेटअप है, इसमें क्या बात है? और कोई भी इंस्टीट्यूशन है, बहुत इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत अच्छे तरीके से खुद को ऑर्गेनाइज उन्होंने कर रखा है और बहुत तरीके से वो चल रहे हैं। तो समस्या ये नहीं है, अब ये इसको कैसे समझें, और वो ऑब्स्टेकल आती कहां से है? क्या मतलब हुआ उसका विदाउट एनी एफर्ट, और एफर्ट क्या हुआ, गोल क्या हुआ, उसमें बदलेगा क्या? और जो नया जगत की ये बात कर रहे हैं, वो नया जगत भाई अवतरण हो गया सुप्रामेंटल का, पर हम जो विश्वास करते हैं माँ की बात के ऊपर, वो तो ये कहते हैं कि आप सुप्रामेंटल आ चुका है और कार्यरत है। पर वहां जो उस समय भी 29 फरवरी को बैठे थे, हमको तो कोई अकाउंट मिलता नहीं कि बहुत लोगों को ये पता चला हो, कितने लोग उस समय बैठे थे वहां, किसको पता चला? तो पहले जब कहा कि जो अप्रत्याशित चीजें थी वो संसिद्ध की जाएंगी, फिर उनकी जो दोबारा थी कि वो जो हमने चीजें देखी थी वो संसिद्ध हुई हैं, ये फर्क हो गया। तो उनके हिसाब से तो काफी चीजें रियलाइज हो चुकी, अब वो क्या हो गया? और फिर नया जगत, ये सारे को कैसे रिलेट करें? इसमें कुछ बात है क्या कीर्ति दीदी? मुझे तो वही समझ आता है कि आपका क्या एटीट्यूड है, किस भाव से आप कर रहे हैं, वो बाहर मैनिफेस्ट होगा। चाहे कितने डिपार्टमेंट्स हो, एक डिपार्टमेंट आप जा रहे हैं कॉर्पोरेट हाउस के, हर चीज बाहर से इम्पोज्ड है, डिसिप्लिन्ड है। एक आप जा रहे हैं किसी ऐसे आश्रम में जहाँ पे लोग कॉन्शियस हैं, क्यों हम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो वहाँ का भाव फर्क होगा। मुझे तो इतना ही समझ आता नहीं नहीं, वो ठीक है, हम तो इंसिस्ट कर ही नहीं रहे आउटर स्ट्रक्चर पे। ये भी व्यक्ति जो जिसके आंखें हैं, मैं यही तो कह रहा हूं, बाहरी रूप से आप देखेंगे तो कॉरपोरेट के अंदर जो डिसिप्लिन है वो मॉनेटरी स्तर के ऊपर वो उसको डिसिप्लिन कर रहे हैं, और वहां जो डिसिप्लिनिंग है वो कोई दूसरे आधार के ऊपर है, पर बाहरी दृष्टिकोण को तो वो दोनों चेंजेस, वो तो डिफरेंशिएशन नजर नहीं आता। उसके लिए तो आपको अपनी चेतना में जब ग्रो करोगे तब आप दोनों में अंतर कर सकते हो कि देखो इसमें डिसिप्लिनिंग है वो इस कारण से हो रही है, भैया कल आपको पैसा नहीं मिलेगा, इसमें इसके फर्क ही नहीं पड़ता, तो उसका डिसिप्लिनिंग का दायरा वो नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं कि बाहरी आंख को ये जजमेंट नहीं कर सकती, वैसे ही
जो नया जगत का जजमेंट है कि वो क्या होगा, कैसा होगा, ऑब्स्टिकल्स का स्वरूप कैसा होगा, मैं इस बात से, इस उदाहरण से इसकी तरफ इंगित कर रहा हूं। ये उदाहरण अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तो इस बात से ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे चेतना के विकास से ही आप दोनों के बीच में एक सामान्य जगत के अंदर और पौंडीचेरी के अंदर जिस जगत का निर्माण मां और श्री अरविंद ने किया है बिना चेतना के, यही तो मैं बार बार कह रहा हूं, उसके भी दर्शन आपको नहीं हो सकते। एक सामान्य व्यक्ति वहां जाता है, वो एक अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस देखता है कि बड़ी अच्छी जगह है, उसके अलावा और कितना वो देख पाता है उसको। तो वैसे ही जिस जगत की या ऑब्स्टेकल की या जीवन के अंदर कोई गोल की हम बातें करते हैं, वो शुरू ही नहीं होते एक सामान्य चेतना के अंदर। तो इसलिए कितना भी वो मेहनत करें, जिसका कि मैंने कहा आज रियलिटी शोज के अंदर आप देखते हैं कि पूरा जी जान लगा देते हैं, अपना पूरा जीवन उसके अंदर लगा देते हैं, तब भी कोई जरूरी नहीं है कि उसके अंदर जो रिजल्ट आता है वो एक बार आंखों को चकाचौंध करने वाला तो होता है। पर इसकी बातें तो नहीं कर रही, उससे नया जगत का तो कोई निर्माण नहीं हुआ, वो तो पुराना ही जगत है उसके ऊपर आधारित है। आपका जो प्राण की महत्ता है, प्राणिक जो सेटिस्फेक्शन है, उसको कितना ज्यादा भड़का दिया जाए, आपकी शिक्षा पद्धति वही तो कर रही है। तो मैं यही बात आपको इम्प्रेस अपॉन करना चाह रहा हूं कि इसके लिए हमको थोड़ा सा एक दृष्टिकोण अलग करना पड़ेगा, नहीं तो हम इन चीजों को अलग नहीं कर पाएंगे। इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करें कीर्ति दीदी? पंकज आप ही बताइए, मेरे को नहीं समझ आ रहा कैसे नहीं, इसको express आइडिया तो करें। समझ में आ रहा है, मैं कह क्या रहा हूँ और माँ ये क्या कह रही है यहाँ पे। हाँ, कि वो चेतना का सारा खेल है ना, अनलेस योर चेतना इज डेवलप्ड आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो आप कह रहे हैं वो कौन ऑब्स्टेकल सी तो सामान्य जीवन में किसके पास ऑब्स्टेकल्स नहीं है भाई? आज कोई भी परिवार के अंदर है तो आप कह दें कि विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, तो ऑब्स्टेकल तो कौन व्यक्ति है जिसके ऑब्स्टेकल्स नहीं होंगी या तकलीफें नहीं होंगी? पर हम कहते हैं वो गोल, गोल का तो कोई कॉन्सेप्ट विशेष होता नहीं। तो क्या हम कि कहना क्या चाह रहे हैं इसमें, ये है क्या स्नेहा? भैया, जैसे अभी आप पूछ रहे तो कैसे डिफरेंशिएट करें चीजों को, तो जैसे एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के एक पर्टिकुलर मतलब एक वे ऑफ उसका जो डूइंग है या उसका वे ऑफ एक्शन है, उससे अगर हम लोग को मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम उस वो जिस तरीके से करता है या कहता है वो तरीका हमारा नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या कई बार मतभेद भी होता है और उसके कारण कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं। लेकिन जब एक एक ये नॉर्मल वे ऑफ हो गया कि हमारा मत नहीं मिलता, फिर हम आपस में थोड़ा-सा एक खिंचाव जैसा अनुभव करते हैं। लेकिन एक दूसरा एटीट्यूड ये हो जाता है, एक चेतना के बदलाव से ये आएगा कि ये व्यक्ति है, ये इंसान है, ये जो बोल रहा है, ये जो कह रहा है, इसका भी तरीका मतलब ये भी जो कह रहा हो सकता है ये कहीं न कहीं ये भी सही है। क्योंकि अगर क्योंकि डिवाइन के जो वर्किंग है वो सिर्फ़ मेरा जो परसेप्शन है उससे लिमिट नहीं हो सकता है। ये भी एक तरीके से भगवान ही अपने आप को हो सकता है इस तरीके से वो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हों, या ये भी एक वे ऑफ डूइंग या सेइंग हो सकता है। तो हम उसके पीछे वो चीज़ देखने का प्रयास करते हैं। ना कि अपने जो हमारे जो एक सेट जो हमारे एक पैटर्न होता है, हम उसको ना फ़ॉलो करके उसमें मतलब खुद से ही अपने बोल बोल सकते हैं कि हम जब थोड़े से कॉन्शियस होते हैं, तो हम उस पक्ष को ना देख कर के दूसरे वाले को देखते हैं कि हो सकता है ये भी भगवान का एक तरीका हो इस तरीके से करने का, और फिर हम उसको उस हिसाब से एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। समझ में आया? हेलो? हाँ ठीक है, इसके अंदर मैं ये देख रहा हूँ अभी फिलहाल, उनका नवजात जी का मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने
अगर मेरे को मिल जाता है तो मैं थोड़ा सा तुमको एक अपन बात क्या कर रहे हैं उसका अब ये देखो, इसमें बेसिकली जो ऑब्स्टिकल्स वगैरह की बात है, तो जो ये कर्म की बात है, ऑब्स्टिकल तो मतलब आपने गोल लिया और विदाउट एनी एफर्ट, जब आप उसको एफर्ट उसकी तरफ एफर्ट कर रहे हो, अब ये देखो ये क्या कह रहे हैं, सारे क्रियाकलाप कैसे करें जिससे प्रत्येक कर्म शक्तिपात बन जाए, भौतिक तक में भी भागवत चेतना का अवतरण हो जाए। यह बहुत आवश्यक है। ये डायरेक्टली अपने लिए अभी प्रासंगिक चीज है। लोगों में एक बड़ी गलतफहमी है कि हम अपनी ड्यूटी कर्तव्य कर रहे हैं तो कर्मयोग हो गया। वास्तव में तो सारे यही कह रहे हैं भी जीवन में ये हमारी ड्यूटी है। ये सारा जो भान है आपका कि एफर्ट आप किस दिशा में कर रहे हैं, भी मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। आपको अगर पूछेंगे मेरी ये ड्यूटी है मेरे परिवार के लिए, मेरे इसके लिए, अगर गोल नहीं भी है तो इसमें बहुत क्लियर कट इन्होंने एक अंतर बताया है और इससे हमको थोड़ा इसका आइडिया मिल जाएगा। अपनी मनमानी ड्यूटी करना कर्मयोग नहीं है। इसको आप ये कहें जी मेरी ये ड्यूटी है ये मैं कर रहा हूं तो ये कर्मयोग हो गया, न इसका कर्मयोग से लेना देना है, न इसका कोई साधना से लेना देना है। बस क्योंकि आपने थोड़े अच्छे शब्दों को पढ़ लिख रखा है, आप उसके संपर्क में आप किसी भी चीज को किसी भी चीज से मढ़ देते हैं। एक तरह का कर्मयोग ले रखा है इंसान ने, काम के बिना बैठ नहीं सकता। जो चीज समझ लेने की है वह यह है कि एक होता है अज्ञान पूर्ण कर्म, एक होता है विवेक पूर्ण कर्म और एक होता है कर्मयोग। एक आप अनायास कर रहे हो अज्ञान पूर्ण तरीके से, क्यों जी ऐसा होते आया है, ऐसा परिवार के अंदर परिपाटी है, समाज में ऐसी परिपाटी है। दूसरा कर्म क्या है, विवेक पूर्ण, वो भी कर्मयोग नहीं है। आपने सोच समझ के एक कर्म लिया कि भी ऐसा मेरे को कोई गोल मैं अपने जीवन में इस तरीके का लेता हूं और उसके तरीके से मैं अपने कर्मों को करता हूं। मैं एक्सरसाइज करूंगा सुबह उठ के क्योंकि मेरे को एक पर्टिकुलर ये अमुक गोल है मेरे सामने, तो मैं उसकी दिशा में कर्म करूंगा। आपका भोजन है वो संयत होगा, आपके व्यवहार हैं वो संयत होंगे, फिर भी ये कर्मयोग नहीं है। तो दूसरा क्या है, विवेक पूर्ण कर्म, और एक होता है कर्मयोग। अब जब तक ये डिफ्रेंसिएशन, ये अंतर आप गांठ नहीं बांध लेते या हम डीपली इस चीज को समझ नहीं जाते, हम हमेशा ही अपने कोई भी कर्म है उनको जस्टिफाई करते रहेंगे और वास्तव में ये क्या होता है हम उसकी शुरुआत तक भी नहीं कर पाएंगे। अज्ञानपूर्ण कर्म तो हम करते ही रहते हैं, अपनी इच्छा विचारों के वशीभूत होकर कर्म करते ही रहते हैं। विवेकपूर्ण कर्म तब शुरू होता है जब हम विवेक से अच्छा बुरा सोचकर अपना निर्णय करें कि ये नहीं, ये नहीं कर सकते। अब वो अच्छा बुरा का दायरा भी आदमी आदमी का देखिए अलग अलग होता है कि ये किसके लिए अच्छा नहीं, ये तो देश के लिए ठीक नहीं है, या परिवार के लिए ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है, या ये सही चीज नहीं है। मेरे को उतना ही कमाना चाहिए जितना कि मेरे लिए आवश्यक है, बाकी अगर कमाई है उसको मेरे को किसी अच्छे सदुपयोग में लगाना चाहिए। सारे जितने भी अच्छे बुरे के हर के अपने अपने तरीके के विचार हैं। उसके तरीके से जो अच्छा बुरा सोचता है, बाकी मेजोरिटी है वो तो ये अच्छा बुरा सोचती ही नहीं। वो तो इसलिए करती है क्योंकि हम, भाई आप अपने कर्म देख लो, मेजोरिटी ऑफ आपके कर्म है वो कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं। आपका परिवार के प्रति दायित्व है, झूठे जो आपने दायित्व अपने ऊपर लाद रखे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा आप संशोधन करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा आप रंग भरते रहते हैं। आज मदर का बर्थडे है तो आज थोड़ा सा ये कर लिया, आज ये वाली बात हो गई तो थोड़ा सा ये रीडिंग कर लिया, आज मन थोड़ा सा क्षुब्ध है तो आज सावित्री पढ़ ली।
पर मूलभूत जो ओरिजिनेशन है आपके कर्म का, वो कहां से हो रहा है, ये तो हर जना अपना पता कर सकता है। कर्मयोग इसके आगे है। कर्मयोग की पहली सीढ़ी है इच्छा का त्याग। आप डिजायर के वशीभूत होके कर्म नहीं कर रहे। तो क्या आश्रम में मां के निहित होके व्यक्ति चला गया, वो इच्छा नहीं रह रही उसके अंदर? रह रही है, पर एक सेंट्रल उसने एक अपना स्टैंड ले लिया। अब डिटेल की बात है, तो ये नहीं है कि इच्छा का त्याग, पर उसने कोई एक हायर शक्ति है उसको ऑपरेट करने का स्थान दे दिया अपने जीवन में। पर कम से कम उसने निर्णय लिया, उसने अपना पांव आगे रखा। अगर इच्छा है तो कर्मयोग नहीं हो सकता। इच्छा के त्याग का मतलब है, अगर आज का दिन आपने भगवान को दिया है, तो जब वे खाना खिलाएंगे तब खाना होगा। जिसको टेलीफोन कराएंगे उसको टेलीफोन करना होगा। अगर आज ऑफिस नहीं जा सके तो दिन तो उसको सौंप दिया है, नहीं जाना होगा। मन में यह दृढ़ संकल्प लेकर आप उसके ध्यान मग्न होकर बैठेंगे। यह संकल्प ले लिया और आप हंसी मजाक में लगे रहे, वह नहीं चलेगा। उसे जुड़े रहना होगा। आपको आश्चर्य होगा, समय पर खाना पहुंचेगा, समय पर आप ऑफिस जाएंगे, समय पर हर घटना होने लगेगी। तो यही मैं जो डिफरेंशिएशन की बात कर रहा था, अब आप तुरंत देखेंगे ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, वो कर्मयोग कर रहा हो सकता है। दूसरा व्यक्ति भी उतना ही या उससे भी बेटर उसका डिसिप्लिन लागू उसने अपने जीवन में कर रखा होगा, पर उसका कर्मयोग से या कोई डीपर वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। यह जीवन का महान आश्चर्य है, जो बिना अनुभव किए आपको पता नहीं लग सकता कि जब आप इच्छाओं का त्याग करके उससे मुक्त होकर बैठेंगे, तो दैनिक जीवन का कार्यक्रम और बेहतरीन चलेगा, उसकी वेस्टेज निकल जाएगी। यह भाव तभी मालूम हो सकता है अगर आप एक रविवार कर्म योग में उससे युक्त होकर कर्म करने में लगाएंगे। तो यह हुई पहली सीढ़ी। जब आप इच्छाओं का त्याग करके समर्पण का भाव लेकर उसका अपने शरीर में आवाहन करके, अपने मन में आवाहन करके बैठेंगे या चलेंगे, तो दूसरी चीज होगी उसकी गाइडेंस, निर्देशन। वह गाइडेंस आने लगेगी, शरीर से आएगी। अचानक आपका शरीर खड़ा होगा, करने लगेगा। आप कहेंगे यह क्या हुआ? अरे वह तो सचेतन शक्ति है, वह जड़ नहीं है। उसको अपने शरीर में उतारोगे तो शरीर को ज्यादा चेतन बनाएगा। वह गलत चीज लिख नहीं पाएगा, गलत शब्द जबान से निकलेंगे नहीं, क्योंकि आपने भागवत चेतना को अपने अंदर उतार लिया है। तो अगर हम काम उससे युक्त होकर करना, अगर हर काम उससे युक्त होकर करना है, तो दूसरी सीढ़ी होगी, उसकी गाइडेंस आने लगेगी। अब एक मोटा डिफरेंस अपने को यह पता चल गया कि हमारा वर्तमान में कर्म का ओरिजिनेशन कहां से हो रहा है। हम उसी दायरे के अंदर हैं, क्योंकि दूसरे दायरे का हमको आइडिया ही नहीं है। अब हम उस पर्सपेक्टिव के अंदर या उसी दायरे के अंदर कहें ऑब्स्टेकल्स आ रही है या ये हो रहा है। अरे भाई, गोल भी नहीं है आपके। गोल क्या है? अभी कौन सा गोल है? तो पहले तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस जीवन के अंदर जब आता है, उसकी यहां बात चल रही है। ऐसा नहीं कि डिटेल के अंदर आपकी इच्छाएं चली गई, आप जैसे हैं वैसे ही। वो जो आपका जो मार्ग है, उसको मतलब उसको सोल्व करने में जो गांठें हैं उनको खोलने के अंदर हैं, वो ऑब्स्टेकल्स हैं। किसी सामने व्यक्ति से आपकी झड़प हो गई तो वो व्यक्ति के कारण नहीं, क्योंकि आपके व्यवहार में वो गांठ है। वो व्यक्ति तो एक माध्यम बन गया आपको ये सचेतन करने के लिए, आपके अंदर ये गांठ है या आपके अंदर पर्टिकुलर ये चीज है। वो सामने आ गया, आपको लगा कि ये ऑब्स्टेकल है, पर वो प्रोजेक्शन तो सारा आपकी साइकोलॉजी का है या आपके जो जैसा फ्रेमवर्क है, वो सामने प्रक्षिप्त हो जाता है। दूसरे व्यक्ति को वो नजर ही नहीं आएगा। आपके लिए जो हर्डल है, एक्सरे वेव्स अगर आएंगी, एक्सरे जो रेज हैं या दूसरी तरंगे हैं, उनको वो हर्डल लगती ही नहीं। तो वास्तव में वो हर्डल इसलिए है क्योंकि आपका गठन उस तरीके का है। तो जो ऑब्स्टेकल है वास्तव में क्या है? आपकी आत्मा को एक सत्य को मैनिफेस्ट करना है।
वो कोई चीज लेके आई है, उसके साथ आपको एक पूरा फ्रेमवर्क मिला हुआ है, उसको आप कैसे इस रिडल को, इस पजल को सुलझाएंगे। तो आप में जितनी चीजें हैं वो गांठें खुलने के अंदर आपको ये लगता है ये ऑब्स्टेकल्स हैं, तो ठीक ही बात है, जितनी ही ये गुत्थियां सुलझेंगी उतना ही आपके अंदर भी वास्तव में नया जगत क्या होगा, नई चेतना के अंदर आपका नवजन्म हो जाएगा। अब पूरे विश्व का होगा या नहीं होगा वो तो एक बाद की बात है। हालांकि जो श्री अरविंद और माँ का योग है किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, और एक सीमा के बाद आप समझ भी जाते हैं कि आप कोई एक पर्सनल अपने ट्रांसम्यूटेशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। थोड़े ही समय में आप जान जाते हैं कि आप माँ की सेवा के लिए हैं, और वो फिर बाद में हर जने के लिए है कि वो सेवा किस तरीके से वो, उसको वो अंदर से गाइडेंस, वो कितना सुंदर उन्होंने कह दिया कि जब आप ये भाव लेके चलते हैं तो अंदर से गाइडेंस आपको मिलनी शुरू हो जाती है। अब ये देखिए ये पूरा परिप्रेक्ष्य चेंज हो गया। अब आप ये बताइए कि आपके कर्मों का ओरिजिनेशन कहां से हो रहा है, तब तो ये गोल वगैरह की कोई बात है नहीं। तो हम दूसरे दायरे की, कोई दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि हमारे लिए स्पोर्ट्स है, पॉलिटिक्स है, या ये सारे गोल हो सकते हैं, पर मैं तो ये कह रहा हूं कि वास्तव में तो वो सच्चे रूप में संसिद्ध भी जब आप सच्ची चेतना से जुड़ते हैं तो ही संसिद्ध होते हैं, नहीं तो उनका रहस्य भी आपको पता नहीं लगता। श्री अरविंद के हर ग्रंथ के अंदर आप ये देखिए कि उन्होंने जिन रहस्यों को हमारे सामने उद्घाटित किया है, उस विषय में कितने भी पारंगत लोग हैं उसके थोड़ा सा भी गहराई में नहीं जा पाते। श्री अरविंद ने इस संस्कृति की बात करी तो जो लोग पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं, इसके जो प्रमाण है वो ढूंढते हैं, वो भी इस पिक्चर को नहीं जोड़ पाते। जिन्होंने वेदों को पढ़ा है या पता नहीं क्या क्या उन्होंने मेहनत करी होगी, पर बिना एक डीपर चेतना से जुड़े, क्योंकि वही तो आपको पर्सपेक्टिव देता है कि किस पजल को या किस टुकड़े को कहां जोड़ें, जीवन को किस दिशा में किस तरीके से देखें। तो जब आप गोल की और इनकी बातें करते हैं बिना पर्सपेक्टिव, बिना किसी डीपर अंडरस्टैंडिंग के, ये हो ही नहीं सकती। ये थोड़ा सा इस माध्यम से, क्योंकि मेरे को अचानक ये ध्यान आया, आप अभी भी उसी कर्म की, क्योंकि हम उससे अलग हुए नहीं। कर्म का मतलब बेसिकली आपका दृष्टिकोण वैसा का वैसा है, आप किस दृष्टिकोण को लेके जीवन के अंदर चल रहे हैं। अगर वही दृष्टिकोण है तो ये वाले गोल की जिसकी माँ बात कर रही है उसका तो हमको आइडिया ही नहीं हो सकता, और फिर उसमें क्या होगा, किस दुनिया की बातें कर रहे हैं उसका भी हमको कोई दूर दूर तक हमको सेंस ही नहीं आएगा। तो उन्होंने तीन चीज बता दी। एक कर्म जो जिसमें आप लिप्त हैं, जो सामान्यतः लोग करते हैं, ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं अभी, इसके बिना तो जीवन में कैसे काम चलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ज्यादा कितनी व्यक्ति को मेहनत चाहिए ये क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होने से कि भाई ये वाली शिक्षा तो मेरे उपयोग की नहीं है, क्योंकि ये मेरे को इस डायरेक्शन में लेके जा रही है, मेरे को तो सत्य की तरफ जाना है, या मेरे को तो किसी और ऐसे उद्देश्य की तरफ जाना है। तो लोग अपना चुनाव करते ही है ना उसके अंदर। पर एक तीसरा है कर्मयोग, जो निहित किस चीज में है, जो इच्छा के ऊपर आधारित नहीं है, कामना के ऊपर आधारित नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका रस भोजन में नहीं आएगा, उसका रस जो उसके कॉन्टेक्ट्स हैं या जो उसके परिवार के लोग हैं या जो उसके आसपास के हैं उनसे आदान प्रदान में नहीं आएगा, या उसकी सुरुचि चीजों में नहीं होगी, ये सारी होंगी। पर उसके जीवन में एक मूल अंतर होगा कि वो वास्तव में उसके सेंट्रल में, उसके मूलभूत, उसके केंद्र में कौन है, उसके केंद्र में माँ है या उसके केंद्र के अंदर उसका परिवार है, सारा ही फर्क पड़ जाएगा। तो अगर हमारे केंद्र में वो नहीं है तो एक काफी रेगुलेटेड जीवन, एट द मोस्ट रेगुलेटेड जीवन तो हम जी पाएंगे, पर माँ किन गहराइयों की बात कर रही है और किस नए जगत की वो बातें कर रही है, अब ये कैसे वो डिस्क्रिप्शन समझ में आएगा। तो ऑब्स्टेकल की बात ये हुई कि वो ऑब्स्टेकल नजर ही आपका पर्टिकुलर, किसी ने कुछ कहा, भाई देखिए आप कहीं रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, जैसे ही आपका अनाउंसमेंट होता है आपके कान खड़े हो जाते हैं, और हजार चीजें कितनी आती जाती रहती होंगी। जीवन में भी जिसका कल्टीवेशन जिस तरीके का है, एक संगीतकार है वो एक बिल्कुल अलग जगत के अंदर जीता है, एक वैज्ञानिक है वो बिल्कुल अलग जगत के अंदर जीता है। तो वैसे ही
जब आप एक भीतरी चेतना के अंदर जागृत हैं, आप ऐसे जगत में नहीं रहते, आपका कर्म इस तरीके से नहीं होता। आप जिनको ऑब्स्टेकल्स मानते हैं वो तो पहले ही उसकी छूट जाती हैं। भाई आप जिस दायरे से नहीं निकल पा रहे, वो तो पहले ही वो सोच के आता है कि माँ मैं सारी चीज आपको दे रहा हूं। तो जो जो समस्याएं आपने पोटली बांध रखी है सो कॉल्ड, वो तो पहले ही डू अवे विथ करके आता है वो व्यक्ति। तो क्या उसके सामने ऑब्स्टेकल्स नहीं होती फिर? आप तो कह रहे कैसे करें, परिवार की इतनी बड़ी बाधा है, मेरा खुद का जो नेचर है वो मेरे को ये काम नहीं करने देता। कितनी अंदर से कोई बात आती है तो व्यक्ति ये सारी चीजें छोड़ के उस पथ पे चल देता है। तो क्या ऑब्स्टेकल्स खत्म हो गई? वास्तव में ऑब्स्टेकल्स अब शुरू होती हैं, क्योंकि अब मुद्दा शुरू होता है कि आप रियल में क्या हैं। उसकी यात्रा तो अब शुरू होती है, पहले कोई यात्रा थोड़ी है। अरे भई आप कोई देखो, कोई बिल्ली है, उसकी संभावनाओं को जबरदस्त रूप से बढ़ा दिया जाए और उस प्रक्रिया के अंदर कितनी आपको ऑब्स्टेकल्स आए, कि देखो कितनी ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं। ये इस स्तर की बात नहीं है, ये आरोहण की बात है। आप उसको उस चेतना के अंदर नहीं छोड़ रहे, आप उसको पशु की चेतना से एक उच्चतर चेतना के अंदर ले जा रहे हैं। तो उस प्रक्रिया में कि एक चिंपैंजी को सिखाने के अंदर भी कितनी समस्याएं आती है, आप कहे बड़ी ऑब्स्टेकल्स हैं, ये उस स्तर की बात नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि उसकी चेतना मात्र में परिवर्तन कर दो। इसमें जो ऑब्स्टेकल्स आने वाली हैं, ये तो अप्रत्याशित है, ये तो कल्पनातीत है, इसकी तो कल्पना नहीं करी जा सकती। जब ऐसा आपने गोल कोई लिया हो जिसके अंदर की मूलभूत हमारे अंदर परिवर्तन आ जाए, जब ये परिवर्तन की इस गोल की बात कर रहे हैं, तो नया जगत हो गया। भी नए रूप पशुओं के अगर आते जाएं तो उसमें क्या नया जगत है? पर नया जगत जैसे ही पहला व्यक्ति, पहली चेतना, मानसिक आते ही जगत में परिवर्तन आ गया, ये नया जगत हो गया। आप एक मनुष्य होके जिस दृष्टिकोण से जगत को देखते हैं, हालांकि उसकी भी कोई कोई लिमिट नहीं है, पर एक जिस जगत में आप निवास कर रहे हैं, आप एक पशु को चाहे कितना भी आपका नजदीकी हो, कितना भी आपसे प्रेम करता हो, आप उसको कन्वे कर ही नहीं सकते। ये नया जगत है। तो आज मनुष्य जिस जगत के अंदर है, उसके लिए नया जगत में नया जगत क्या होगा? आप इसी दायरे के, आपके जो आज के दायरे हैं उनको और ज्यादा बढ़ाते रहो, तो आज के जो सर्कल्स हैं उनको और विशाल करते रहो, इसमें कोई रहस्य आपको नहीं मिलने वाला है। वो तो साइंस कर ही रही है, वो तो विज्ञान कर ही रहा है। इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कमल का जो रहस्य है उस कीचड़ को एनालाइज करने में नहीं होगा। आप कितनी भी मेहनत करें, आप विश्व के सारे साइंटिस्ट को उसके एनालिसिस में लगा दीजिए कीचड़ के, क्या वो कभी भी बता सकते हैं कि रहस्य इसका कमल का इस कीचड़ के अंदर है? तो हम जिस डायमेंशन की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि उस जो कमल का रहस्य है, वो उसके हेवनली आर्केटाइप, उसका जो प्रारूप है, उसके अंदर मिलेगा, न कि उस कीचड़ के अंदर। तो जो माँ इस यहां बात कर रही है, कुछ इस तरीके से अगर हम समझे इस नए जगत को, इन ऑब्स्टेकल्स को, हमारा जो एफर्ट है उसको, तो हम इसको एक कोई थोड़े परिप्रेक्ष्य के अंदर समझ सकते हैं। नहीं तो हम उन्हीं दायरों में समझेंगे, जैसे कि एक किसी पशु की जो उसकी लेटेंट फैकल्टी, जो कैपेसिटीज हैं, उनको ही आप और परिवर्धित कर दें, तो क्या नया जगत होगा? भाई कोई एक बंदर है, वो और अच्छी अपनी प्रक्रियाएं करने लगेगा तो नया जगत थोड़ी हो जाएगा, उसमें वही जगत होगा। इनफैक्ट अगर जरूरत से ज्यादा आप कर देंगे, वो नुकसानदायक और हो जाएगा। ऑलरेडी व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने अहंकार बोध से, अपनी क्षमताओं के बोध से इतना ज्यादा अहम के अंदर है, और थोड़ी बहुत आप में कुछ कैपेबिलिटी आ जाए और उसको रिकॉग्निशन मिल जाए, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा गाता है, इसके हाथ में तो बड़ा अच्छा ये है, तो बड़ा अच्छा लिखना जानता है, गाना जानता है, इसकी तो मैनेजमेंट जो कैपेबिलिटीज है बड़ी फिनोमिनल है, इसके पास पैसा है। ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर भी व्यक्ति संपर्क खो बैठता है अपनी डीपर जो ह्यूमिलिटी है उससे।
तो आपकी अगर क्षमताओं का सच्चा परिवर्तन हो जाए, जो मनुष्य को उपलब्ध हैं वो क्षमताएं अगर आपके अंदर उनको परिवर्तित कर दिया जाए, तो वो तो एक बहुत बड़ा एक आपके साथ कैलेमिटी हो जाएगी, आपके साथ तो बहुत खराब चीज हो जाएगी। तो वो बातें यहां नहीं करी जा रही। कीर्ति दी, कुछ थोड़ा एक आइडिया आ रहा है इसका? स्नेहा, हाँ भैया। इससे कुछ क्या कुछ अब सेंस बना पाते हैं? भैया, आपने जो तीन जो मतलब कर्म की जो तीन स्टेज, एक तो नवजात जी ने ज्ञान पूर्ण। ठीक बताया कि भी हाँ। कर्म जो है वो, अगर हम हाँ, सामान्यतः उसी को ड्यूटी को तो कह के, पहला। क्योंकि हम उससे निकलने की हमारे में हिम्मत नहीं है, इसलिए हम बड़े सुंदर सुंदर तरीके से उसको, उसकी भद्देपने को हम उसको डेकोरेट करते हैं। हम अपनी कायरता को डेकोरेट करते हैं, ये कह के ये ड्यूटी है, ये कर्म योग है, पर वो निरी कायरता है। आप मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है, पर आप डेकोरेट करते हैं। और क्या करें भाई, उसके सही कलर्स को और आंखों में आंखें डाल के देखने के लिए तो हिम्मत चाहिए। ये मेरी ड्यूटी है, क्या करें, परिवार के प्रति दायित्व है, क्या करें, उसके लिए उससे मैंने ऋण ले रखा है, इसका ऋण, उसका ऋण। अरे सच्चा ऋण है उसको करो, सारों के ऋण अपना आप चुक जाएंगे। पर वास्तव में ऋण भाव भी नहीं है, मक्कारी है। आप कोई ऋण भाव से कर नहीं रहे हैं, कोई ड्यूटी भाव से, कोई वास्तव में अगर सच्चा है, सिंसियर है, तो बिफोर लॉन्ग उसको अंदर से ये प्रेरणा भी आनी चाहिए कि ये कोई ड्यूटी थोड़ी हुई। और क्लैशिंग ड्यूटीज तो रहती हैं, अर्जुन के सामने थी। तो जब दो तरीके की ड्यूटी के कॉल्स होंगे आपके पास, कौन सी को वरेण्य मानेंगे? आपको लगता है आप ड्यूटी के कारण चलते हैं, पर फिर आप अंदर से आपका क्या बेंट है, वैसे चलते हैं आप। तो ये कहना कि मैं ड्यूटी कर रहा हूं माँ बाप की, ये की वो की, ये अपनी कायरता का जो भद्दापन है, उसी को डेकोरेट करना है। अभी तो विवेकपूर्ण कर्म भी नहीं है। कर्मयोग या हम जो माँ के निहित कर्म करने की बातें कर रहे हैं, उसका तो टेक्सचर ही अलग है, उसका टेक्सचर ऐसा नहीं है। इसलिए माँ कह रही है कि भाई इसका तो अनुभव हुए बिना कैसे बताया जाए। बार बार तो माँ कह रही है इसमें भी कि ये एक ऐसी चीज है जो बिना अनुभव के नहीं बताई जा सकती। अगर इस दृष्टिकोण से अब सारे हम इसको पैसेज को देखेंगे, ये हमको एक नई लाइट में नजर आना शुरू हो जाएगा कि माँ रेफर किसको कर रही हैं। और उसके साथ जो घटित होगा उसका है, वो जब अग्नि के अंदर से वो व्यक्ति निकलेगा, अग्नि किस चीज की, ऑब्स्टेकल्स किस चीज के। अरे कितनी कितनी गांठें आप अपने सबकॉन्शियस में, अपने परिवार से, अपने चाहत है, अपने सोच है, समझ है, वो आप कैरी कर रहे हैं। जब उसको सामने से काउंटर किया जाता है, कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई व्यक्ति सामने आपको बाधा के रूप में हो। आश्रम में जाते ही वो व्यक्ति क्या कहते हैं, सबसे पहला जो उनका बहाना होता है वो है भोजन। भाई ये भोजन तो मेरे को सूट नहीं करता, ये जो डैम्प एटमोस्फियर यहाँ आश्रम का, ये मेरे को सूट नहीं करता। माने का इतना कॉमन है ये। तो अब मेरे को लगता है कि बचपन से मैंने ये देखा कि लोग ये कहते हैं कि हमको रोटी कपड़ा मकान ये वो इतनी सारी चीजें हैं, विचारों का जीवन इसमें निकल जाता है। तो एक ऐसा स्थान हो जहां व्यक्ति इन सब जो चिंताएं हैं इनसे मुक्त होके अपनी आत्मा का अन्वेषण कर सके। पर जब मैंने ये स्थापना करी और अब जब मैं देखती हूँ लोग, हालांकि वो भी आए हैं, ऐसे लोग नहीं है भी जिनका अकाउंट हमको मिलता है, कोई वैसे सामान्य लोग नहीं है, पर फिर भी माँ कह रही है अब मैं ये देखती हूँ कि जो जितनी भी समस्याएं हैं संसार के अंदर, वो जरूरी हैं। जिस तरीके का हमारा नेचर बना हुआ है, बिना वो जो हार्डशिप्स उसके ऊपर लागू नहीं करी जाए, तो व्यक्ति सो जाता है, तामसिक हो जाता है, उसको वास्तव में चाहिए ही नहीं। हम कहते हैं अगर मेरे पास ये समय हो तो मैं माँ का ध्यान करूं, मैं ये करूं, वो करूं,
अभी आप लोगों के पास तो कोई बहाना नहीं है। पहले लोग कहते मेरे पास ये सुविधा नहीं है, माँ की वाणी कैसे पढ़ें, कैसे सुने। आज तो हमारे पास जिस युग में हम हैं, जो टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं आज, हमारे पास किसी के पास कोई बहाना नहीं है। और फिर भी देखिए वो बहाने जो पहले चलते थे वैसे के वैसे, आपके नए करने के बहाने आज भी वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में ये सारा जो एडवर्स फोर्सेस की ओर की जो बातें चल रही हैं, भाई आप बहाव के साथ बड़े प्रेम से चल रहे हैं तो आपके लिए तो वो समस्या है ही नहीं। ये तो उस व्यक्ति के लिए बात चल रही है जो जीवन में कोई दूसरी अभीप्सा, कोई अंदर की अभीप्सा लेके चल रहा है। उसके लिए ये हार्डशिप्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, सारी चीजें उसके दायरे में माँ कह रही हैं। उसके लिए नहीं कह रही जो पेट पालना चाहता है तो भी समस्याएं जीवन में आती हैं। वो बातें नहीं है स्नेहा। तो भैया तो हम तो विवेक वाली बात तो हम में बहुत कम ही है, हम तो पहले वाले से ही रन हो रहे हैं हर वक्त। यही कह रहा हूं मैं, मेजोरिटी तो तो वही कर रही है। दूसरा तो है ही नहीं। तो फिर हाँ वो जो डिफिकल्टीज की जो बात कर रहे हैं, जो हाँ, एफर्ट की बात हो रही है, तो वो तो हम कंसीव भी नहीं कर सकते हैं बिल्कुल कि यही कह रहा हूं मैं। यही बात शुरू से कहना चाह रहा हूं मैं, यही तो शुरू से मैं कहना तो चाह रहा फिर हूं इस कि चीज को, लेकिन पर फिर उस अगर माँ के हर चीज जितने भी मदर के वर्ड्स हैं, तो फिर हम लोग फिर समझे कैसे? मतलब कि ये यही सिर्फ पैसेज की बात नहीं है, तो हाँ कहीं ना कहीं हाँ पूरी पैसेज की ही पूरे हाँ, मदर के वॉल्यूम्स बिल्कुल। की ही ये बात है, फिर तो हम हाँ उसको नहीं, कैसे मदर की क्या, समझे फिर? कोई भी जो डीपर बात है सब वही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। यही बात तो मैं हर बार इसी में तो मैं थोड़ा बहुत इंगित करना चाहता हूं, इसी को सजेस्ट करना चाहता हूं कि ये इस स्तर की बात नहीं है। हमने जी माता जी को पढ़ लिया, सारे वॉल्यूम भी पढ़ लिए आपने, तो भी उसका कितना होने वाला है, वही बात आप जो कह रहे हो वही बात है। और ये ही इसीलिए तो मैंने इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन के ऊपर मैं नहीं गया। ये हमको मजबूर करता है ये सोचने के लिए कि हम जिस पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं, क्या वो हम सोच तो सही जगह रहे हैं क्या। डिस्क्रिप्शन तो बाद में आएगा, उसका वर्णन तो बाद में होगा, हम वहां हैं ही नहीं। यही तो बार बार मैंने, कितनी बार मैंने ये तो कह दिया कि हम वो खेल ही नहीं खेल रहे और पर उसके भैया नियम जबरदस्ती लागू कर रहे हैं। पर हम बहुत सारी चीजें रिलेट कैसे करते हैं फिर? मदर के वर्ड से मैं अपने बहुत सारे लाइफ, बहुत सारी परेशानियों को, चीजों को मैं रिलेट करके फिर वहां से मैं को सोल्यूशन कुछ समझ में आता है तो करते, फिर वो कैसे होता है फिर? जब आप बोल रहे हो कि हम उस स्तर पे, मतलब मैं भी आप जैसे समझाए तो मेरे को समझ में आ रहा है कि ठीक है, हम लोग पहले वाले से ही। लेकिन कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं भैया, जो हम लोग, जो माँ की वाणी है उससे खुद को और जो हमारी सिचुएशन उसको बहुत ज्यादा रिलेट करके, और वहां से फिर हम लोग को जो भी सोल्यूशन मिलता है या हमको लगता है अब ये अच्छी करने बात है, से शायद हम। ये तो कोई भी चीज में है। जैसे गीता के अंदर भी श्री अरविंद कहते हैं कि गीता की प्रासंगिकता इसलिए है क्योंकि हर स्तर के व्यक्ति के लिए इसमें कुछ ना कुछ संदेश होता है। अगर ये सीढ़ी न होती तो ये तो सबके लिए इनएक्सेसिबल हो जाता। तो हम ये नहीं कह रहे कि वो हमारी अप्रोच से दूर है। इनफैक्ट ये कहने का ये तरीका है कि हमको ये दिखाया जा रहा है कि वास्तव में माँ इंगित कर रही है वो कहाँ है। हम जिस सीढ़ी पे हैं, माँ ने एक सीढ़ी प्रदान कर दी, आप उस पे आरोहण भी तो कर सकते हैं। आप ये पूछ रहे भी हम प्रैक्टिकली क्या करें इसका, हम इससे रिलेट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर रिलेट आप जहां हैं, आपको एक मैप दे दिया, आपको कहा आप रिलेट कर पाते हैं, तो ये कहने का ये मतलब थोड़ी हुआ कि आप वहीं रुक जाएं। आप चलें उसके ऊपर। आपको एक नक्शा दिया तो उसके ऊपर चलो। तो आप जिन चीजों पे रिलेट कर पा रहे हैं अच्छी बात है, इसीलिए तो हम ये कर रहे हैं। पर हम साथ में ये भी तो दिखाना चाह रहे हैं कि हम अपने स्तर के ऊपर जो इसको रिलेट करते हैं, पर इससे कितना क्लियर हो गया कि शायद माँ क्या कह रही होगी, वो एक अवस्था भी तो हमको पता चली। तो आज मैं एक सीढ़ी पे हूं और मेरे को अगर 10 सीढ़ी आगे की नजर आती हैं तो ये बड़ी खुश होने की बात है कि मेरे को 9 सीढ़ी मिली जिस पे मैं चढ़ सकता हूं। अब ये व्यक्ति के ऊपर है, वो इसको सहर्ष लेता है, इसीलिए वो बाद में कह रहे हैं। भाई माँ आगे कह रही है
कि वो लोग इस हॉरर, फिर हॉरर नहीं होता उसके, अबे हॉरर कहाँ, उस व्यक्ति के लिए तो आगे से आगे सीढ़ियां खुलती जाती है। हॉरर तो उसके लिए है जिसको ये रिलेट नहीं कर पाए कि अरे ये क्या हुआ, जिसके जीवन में होप ही ना हो। तो ऐसा तो मेरे को नहीं लगता यहां कोई होगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हॉरर है, उसको पता नहीं लगता है या नहीं लगता कि जो बिल्कुल गहरे रूप से उसमें ही है, और जो सारे दिन परिवार से रस ले रहा है, खाने पीने में रस ले रहा है, अपने ही जो छोटे दायरे हैं उसमें रस ले रहा है। पर क्या अभी भी हम में से कोई ये कह सकता है कि श्री अरविंद ने जिन गहन विषयों को हमारे सामने रखा है हम रस ले पाते हैं? तो क्या हमको ये एस्पायर नहीं करना चाहिए कि जब इतना सारी चीज श्री अरविंद ने हमारे सामने रख दी, तो ये हॉरर को और ज्यादा क्यों करे? जीवन का जो हॉरर है वो तो सबके सामने है जैसा है वो, पर कितनी होपफुल चीज है। हॉरर तो तब है जब माँ और श्री अरविंद के कहने के बाद भी हम उधर नहीं मुड़ पाते, एक, या काश वो होते ही नहीं। जैसे माँ ने कहा जीवन का लक्ष्य उनकी बुकलेट में है ना, कि अगर आप कभी, कैसा जीवन होता होगा उनको जो कभी इनको ये संभावना ही नहीं मिली कि श्री अरविंद ने ये बात कही है, श्री अरविंद की वाणी जिन्होंने न सुनी हो, उनका जीवन कैसा है, कितना हॉरिबल होता होगा। इसलिए वो एक ब्लिसफुल इग्नोरेंस में है कि यार इसमें क्या बात है, तुम लोग परेशान हो, जिनके थोड़ी सी एस्पिरेशन आ जाती है वो सारे दिन परेशान रहता है, क्योंकि आप वास्तव में न तो इधर निर्णय कर पा रहे हैं न इधर निर्णय कर पा रहे हैं, तो आप परेशान रहते हैं। और आप डेकोरेट करते हैं अपने जीवन की विभत्सा, जो उसकी भद्दापन है उसको फिर डेकोरेट करते हैं, जी मैं थोड़े दिन इनके पास भी जाया या थोड़े दिन मैं इस आश्रम में जाया या मैं इस रिट्रीट में जाया या। पर अभी भी जो मेन आपका जो जो गांठ है, जो सेंट्रल आपको जो बांधे हुए है, वो तोड़ने की तो अभी भी आप में साहस नहीं है। और वो नहीं है तब तक तो आपके ऊपर जो चीजें लागू होंगी जो हॉरर की, वो आप उससे कैसे बचेंगे? आपको तो वो स्वीकार करनी पड़ेंगी, और कर रहे हैं आप तो। आप कहते जरूर हैं कि भी हमको ये अच्छा नहीं लगता, पर बहुत गहरे से अच्छा लगता है, इसलिए आप स्वीकार कर रहे हैं। जब इस दृष्टिकोण से हम इस पूरे पैराग्राफ को फिर से जब देखना शुरू करते हैं, देखो कितना एक बिल्कुल अलग एक कॉन्टेक्स्ट में, इसमें पर्सपेक्टिव में चला जाता है, एक बिल्कुल अलग लाइट के अंदर आ जाता है। इसमें किसी के कोई बात है कीर्ति दीदी? नहीं, इस पे मंथन करेंगे अभी। हाँ स्नेहा, आप क्या बोल रहे थे? नहीं भैया, कुछ भी नहीं। देखिए आगे का जो पैसेज है वो बहुत बड़ा है, और इसमें हम ये चाह रहे हैं वास्तव में जो हमने बात करी थी, आप पहले से इसको थोड़ा अभ्यास करके आइए, इसको पहले पढ़िए, आप सबके पास टेक्स्ट हैं, इसका पूरा लाभ और इससे क्या क्या चीजें इसके अंदर निहित हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये चीजें जो अपन ने बात करी वो इसमें निहित हों, क्योंकि माँ किस उस कॉन्टेक्स्ट में ये कह रही होंगी, किस व्यक्ति को किस समय किस बात में कह रही होंगी, और इसका एक्चुअल में अर्थ इस पैसेज का भी, क्योंकि एक एक बात जो है उससे अगर हम उसको प्रश्न करें कि रिलीजियस आइडिया ऑफ फॉल्ट है, सिन है, रिडेम्पशन है, किस तरीके से वो काम कर रहा है। क्या हम धर्म के दायरे से बाहर हैं? नहीं है। जैसे हमने ऑब्स्टिकल की बात करी, जैसे एक नए जगत की बात करी, वैसे ही हर लाइन के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं कि उसको अगर खोला जाए, पर उतना ही समय उसके अंदर जाना चाहिए, और वो जो आपका धरातल रहा है आज तक, आपने माँ श्री अरविंद को पढ़ा है, या इस कॉन्टेक्स्ट में आपको सर्च करना पड़ेगा कि वो कह क्या रहे हैं।
तब आप सारे का मंथन जब इस दृष्टिकोण से करते हैं तो इससे सुग्राह्यता बढ़ती है, आप इससे ज्यादा ले पाएंगे। एक एक शब्द इतना ज्यादा मीनिंगफुल है और अपने पीछे पूरा का पूरा जगत समाहित रखता है। अब रिलीजियस आइडिया इन्होंने कह दिया, अगर हम इसको पास बाई कर जाएं, क्या समझ में आएगा? क्या पागल है रिलीजन? यूं ही वो डेवलप हो गया। उसमें ये फॉल्ट का, सिन का, रिडेम्पशन का जो आइडिया है, क्या वो प्रासंगिक है? उसकी रेलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है? नहीं है तो फिर बाद में इतनी जो जो आपके मानव जाति है वो क्यों इससे विमोहित है? भाई पूरे जो सेमेटिक रिलीजन्स हैं आपके, और इवन जो आपका हमारा जो धर्म है, जो इंडियन रिलीजन है, हमारा जो पुराण वगैरह में है, वो बता रहे हैं आपको कि ये सारे कर्म करेंगे तो इसका ये परिणाम है। आपके गरुड़ पुराण वगैरह के अंदर ये वर्णन है, आपने ऐसे ऐसे काम किए। नारायण का नाम अगर बिना मन के भी या बिना सोचे समझे भी अगर आप अंतिम क्षण के ऊपर लेते हैं, उसका ये परिणाम है। तो रिलीजियस आइडिया है ना इसके पीछे, उसका इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में कहां वो कड़ी में जुड़ता है। फिर बाद के अंदर ये जो इंगट की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी चीजें जल जाएंगी? क्या वो वास्तव में जल जाएंगी? जलने का वास्तव में अर्थ क्या है? और उसमें सोना रह जाएगा। कौन सी बात है वो सोना है, वो रह जाएगी। इसी तरीके से अब आगे ये कह रहे हैं कि जिसको भगवान फ्रेंडली तरीके से, जिसके प्रति उनका मित्रता का भाव है, उनके साथ वो सवियरली बिहेव करते हैं, उनके साथ उनका जो व्यवहार है बड़ा कठोर होता है। क्या उस व्यक्ति को लगता है या सामने वाले को ही लगता है कि ये इसके साथ तो देखिए कैसे कैसे, और सामने वाले को लगता है तो कठोर, हम ये कहें कि भी कठोरता, ये कठोरता का कॉन्सेप्ट क्या है? कि भगवान ने इसका जो एकमात्र जो बेटा था, देखिए वो भी उठा लिया। इसका जो मतलब जो आपके बेसिकली जिसको वो वैल्यूएबल्स मानते हैं, उनसे जब बिछड़ना होता है तब आप कहते हैं कि भगवान इसके साथ सवियर हैं, बड़े कठोर हैं। आपकी पद प्रतिष्ठा है, जो भी चीजें हैं जिसको आप वैल्यूएबल्स मानते हो, उनसे जब दूर होना पड़ता है, वो वैल्यूएबल्स कोई भी हो सकते हैं, तो आप कहते हो देखो भगवान इसके साथ बड़ी कठोरता से, निर्दयता से पेश आ रहा है। क्या वो निर्दयता है या खाली वो एक डेकोरेशन की जैसी निर्दयता है? क्या व्यक्ति को वास्तव में चैलेंजेस नहीं होते जो इस मार्ग में आता है? क्या ये सवियर नहीं होता परमात्मा उसके साथ? बिल्कुल होना चाहिए। अभी आप टेस्ट लेते हैं, आपका वफादार है या नहीं है, उसको भी, शिष्य को एक गुरु अपनाता है तो भी उसकी परीक्षण होता है ना। तो परमात्मा जब जिसको अपनाता है तो परीक्षण तो होना ही चाहिए, पर वो क्या उस तरीके से परीक्षण करता है या नहीं करता है, उसके बारे में माँ क्या कह रही हैं। फिर बाद में ये परीक्षण उसको लगता है या सामने वाले को ही लगता है। और जिसको हम सवीरिटी कहते हैं, तो वास्तव में क्या वो वैसी है या वो तो ग्रेस है? आपने कहा कि इसके जो भी इसके पास जो कीमती चीजें, बहुमूल्य चीजें थी, पहले इसके पास कितना अच्छा सफल व्यक्ति था, अब जब से माँ के पास गया है, इसको न तो कोई पूछता, न परिवार में इसके शांति। तो क्या ऐसी बातें होती हैं? यू थॉट इट वॉज ए जोक बट इट इज ट्रू, पर ये सच है। तो ये सारे जितनी भी चीजें हैं बहुत गहराई से, और एक एक प्रश्न को आप अपने स्तर पे, जैसे हमने शुरू में ही खाली ये थोड़ा सा भी मंथन किया, वो आपको कहां से कहां तक लेके जा सकता है। वैसे ही अगर इस पैसेज को खोला जाए, क्योंकि कोई भी पैसेज ऐसा नहीं है जिसमें माँ की समग्रता, श्री अरविंद के दर्शन की समग्रता उसमें शामिल न हो। जब तक उस सारे को समाहित न किया जाए तब तक वो पूरा जो एक सर्कल है आपका पूरा नहीं होता। आप अपने स्तर के ऊपर कहते हैं हाँ हाँ ये तो बिल्कुल ये वाली बात है, या डिफिकल्टीज तो देखिए जीवन के अंदर व्यक्ति को मजबूत ही बनाती है, वो तो हम सभी देखते हैं। अरे भी परिवार के अंदर बचपन के अंदर उसके माँ बाप चले गए,
तो देखिए उसके ऊपर जिम्मेदारी थी, इसलिए वो बड़ा एक मजबूत बन के आया। तो उन डिफिकल्टीज की बात कर रही है माँ। तो अगर वो डिफिकल्टीज की बात है तो नया जगत की फिर क्या बात हुई? कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बचपन से ही हमारे तो माँ बाप नहीं रहे, तो फिर वो नए जगत की स्थापना हो गई होगी। ऑर्फनेज के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो तो नया ही जगत बसा देते होंगे, क्योंकि उनके पास वो वैसे कोई भी वैल्यूएबल्स नहीं होते। तो भगवान आपके तरीके से तो उनके साथ बहुत सवियर है, पर क्या ऐसा होता है? ऐसी वो तो हमको, उनको अगर देखें ऐसी कोई सवियरिटी नहीं थी। कितनी सक्सेस स्टोरीज जो हमको दिखाई जाती हैं, वास्तव में क्या वो सक्सेस स्टोरीज हैं? पर क्योंकि हमारी वैल्यूज ऐसी हैं, हम उनको महिमा मंडित करके कहते हैं ये सक्सेस स्टोरी। पर वास्तव में उसके मुंह का टेस्ट देखो, उसकी आत्मा से पूछो कि वो सक्सेस है या नहीं है। मैं खाली थोड़ा सा इसके अंदर ये जानना चाहता हूं कि पॉपुलरली जैसी चीजें हमको आसपास जितनी बातें सुनने देखने को मिलती हैं या जिस तरीके से प्रस्तुत करी जाती हैं, आप वैसे उदाहरण मत दिया कीजिए। और वहां से आप उदाहरण लेते हैं क्योंकि भाई हमारे खुद के अंदर भी वैसी कोई गंभीरता नहीं है, इसलिए हम मजबूर हैं वैसे उदाहरण लेने के लिए। ये दिखाता है कि हम चिंतन नहीं कर रहे हैं, नहीं तो वो उदाहरण जो हम दे रहे हैं वो उदाहरण रेलेवेंट ही नहीं है। ऐसे ही इसमें बहुत बहुत चीजें हैं। अगर आप लेके आते हैं इसके प्रश्न तो हम इसको दोबारा भी कर सकते हैं, और नहीं होगा तो आगे हम इसको चालू रखेंगे 33 पेज नंबर से। पर आप इसका मंथन जरूर करके आइए। ये कोई भी इशू है, ये इसमें हमने इसको टच नहीं किया, आप ये मत सोचिए हमने इस इशू को टच किया है। मैं तो खाली थोड़ा सा ये दिखाना चाह रहा था कि हम जिस स्तर पे समझ रहे हैं ये उस स्तर पे नहीं है। बाकी ये इशू अपने आप में रिजोल्व नहीं हुआ है, एटलीस्ट हमारी चेतना के लिए इसका पूरा क्या होना चाहिए वो पूरा लाभ नहीं हुआ है। हाँ जी कीर्ति दीदी। आप ठीक कह रहे हैं, इसका मंथन ही करेंगे, इसको पढ़ेंगे, फिर आपके उसके संग समझ के फिर ही कर सकते हैं ना। इसमें हर चीज पे प्रश्न कीजिए और इसके प्रश्नों को फ्रेम कीजिए। लिखने से कतराइए मत आप लोग, क्योंकि जब वो कड़ियां एक से दूसरी जुड़नी शुरू होती है, कारण क्या है कि आप कोई दूसरी भी माँ की राइटिंग पढ़ेंगे तुरंत ये इस बैकग्राउंड के ऊपर आपको थोड़ा, मतलब ये क्रिस्टल्स ऐसे आपके बनेंगे कि आप जब पढ़ेंगे वो एक से दूसरी कड़ी जुड़ेगी। नहीं तो वो ऐसा है कि आप कितना भी निर्माण कर रहे हैं, बहते पानी के अंदर है, वो हमेशा निकलता जा रहा है, उसके साथ समय भी जा रहा है, उसके साथ सारी चीज जा रही है। तो व्हाई नॉट पुट एन एफर्ट उसको कि हम उसको पेपर पे लिखें, और उसको फिर बाद में बार 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 उसको एक बार लिखने से भी नहीं। जब हम ये टॉपिक आया, इसमें ये चीजें हैं, ये तो हमारी पूरी साधना की सीढ़ी होनी चाहिए, वो डायरी थोड़ी होगी। आप उस बात को खोलेंगे फिर उसके साथ रिलेट करेंगे। अगर सिंसियर होंगे तो कोई भी व्यक्ति इसको ऐसा किए बिना रह ही नहीं सकता। ये तो व्यक्ति के अंदर ये भान रहता है कि मेरे को हाँ ये पता चल गया, मैंने सुन लिया, मेरे समझ में आ गया। पर आपके जीवन का चौखटा तो वैसे का वैसा चल रहा है, इसलिए क्या समझ में आ गया इसका प्रमाण तो आपका जीवन है। अगर आप उस दायरे को नहीं छोड़ पा रहे हैं जो तीनों उन्होंने बता दिए, अगर आप वो भी, जो उनकी टेप है नवजात जी की, इसी काम को तो वो कर रहे थे। अब वो जितना गंभीर कर्म कर रहे थे, हम कल सेलिब्रेट करेंगे बिसाऊ में उनका जन्मदिन को, और बहुत सुंदर तरीके से ये कार्यक्रम होने वाला है। पर वो किस चीज को लेके चल रहे थे, हम आशा करते हैं हम खुद भी एस्पिरेशन वैसी जगाएं और हम उस कर्म में लगें। आज हम जो कर रहे हैं उसके ऊपर पहले तो प्रश्न करें, क्या ये चीजें कर्म के दायरे में आ रही हैं या खाली ये फेक डेकोरेशंस हैं जो हम अपनी विभत्सता को आंखों में आंखें डाल के नहीं देख पाते, इसलिए बार बार उसको डेकोरेट करते हैं। हम थोड़े दिन वहां की यात्रा कर आए, हम थोड़े दिन पौंडीचेरी आश्रम की यात्रा कर आए, हम थोड़े दिन हमने ये कर लिया।
हमने ये एक व्याख्यान रख लिया, हमने एक दर्शन डे मना लिया। कुल मिला के ये क्या हैं? अगर आपका दायरा वही है तो वही हैं जो मैंने अभी बताया था। जब तक आपने वो एक स्टेप नहीं ली है तब तक ये प्रिपरेशन तो हो सकते हैं, कोई हम ये भी नहीं कहें फ्यूटाइल हैं, पर अभी वास्तव में वर्थवाइल चीज जीवन में हुई नहीं है। एक भाव है, भाव। भैया हाँ जी, जी बताइए। बताइए। शब्या जी कुछ कह रही हैं आप? में हम पढ़े थे कि माइंड का कोई भाग रहता है जो हमारे हर काम को औचित्य ठहराता है, तरह तरह का उदाहरण देके, एग्जाम्पल्स देके। और नहीं, हम भाग अपने जीवन बुद्धि का, माइंड का पहला काम ही यही है हाँ, कि हाँ, आप जो तो करते हो उसको जस्टिफाई करना। हाँ, उसका तो माँ की इस चीज को हम जान गए, तो जब माइंड हमारा उस तरह किसी काम को जस्टिफाई करने लगता है जो मदर के कहे हुए बात से अलग है, तो उस समय तो हम उस पर रोक लगाने लगते हैं। वह उतना कॉन्शियस तो हो जाते हैं कि हमारा माइंड यहाँ हम पर हावी हो रहा है। जो भी कोई भी बात को लेके, एक बात हम आश्रम में ही सुने थे मनोज दास के भाषण में, कि लोग आश्रम घूमने आते हैं, यहाँ का आउटर लाइफ और इनर लाइफ के बारे में नहीं जानते, 2-4 दिन देखते हैं, बोलते हैं बाहर का जगह और ये अंदर है। तो मेरे मन में प्रश्न था कि इनर लाइफ आउटर यहाँ का क्या है। तो नौजाद जी के घर हम भी जाते हैं, वहां बुआ से हम पूछे कि बुआ यहाँ का इनर लाइफ और आउटर लाइफ में क्या डिफरेंस है। तो हंसी थी और बोली थी कि सबे तुम तो बराबर आती हो यहाँ, हम लोग को देख के तुम क्या जानती हो, समझती हो। तो हम बोले थे कि आप बुआ है, विजय भैया है, किरण दी है, ऐसे बोलते। ऐसे तो हम लोग हैं, विजय भैया है, किरण दी है, नौजात भाई है या भाभी जी है, लेकिन हम लोग सब एक दूसरे को माँ का बच्चा समझते हैं। हम लोग बाहरी रिलेशन है जो लोग बाहर देखता है, लेकिन हम लोग का दीदी भैया नहीं, हम लोग सब, या तुम भी यहाँ आई हो तो तुम एज ए डिवाइन चाइल्ड हो, माँ के बच्चे हो। तो इसका रिएक्शन हम उन लोग के घर में देखे। जब भाभी जी का डेथ हुआ, नौजाद जी की भाभी जी का, उस दिन 2 दिसंबर था और आश्रम का प्रोग्राम था। 2:30 बजे उनका डेथ हुआ, बॉडी को घर में लाके रख दिया गया, और किरण दी, विजय भाई, चंदा दी, सब लोग परेड में वहां शामिल थे। हमको भी उस समय मालूम नहीं था कि उनकी डेथ हो गई है, लेकिन जब हम लोग खत्म हुआ प्रोग्राम और लौट के आए कॉर्नर हाउस, तो कॉर्नर हाउस में हमको पता चला कि उनका डेथ हुआ है, तो हम उनके घर गए। और हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी तो हम सबको पैरेड में देखे हैं, तो यहाँ घर में डेथ हुआ तो उन लोग वहां कैसे है। अब हम लोग साधारण जीवन में रहते तो अरे डेथ हो गया है तो बहाना मिल गया, आज अब हम लोग नहीं जाएंगे, बॉडी के पास बैठे रहते, रोते रहते। लेकिन उन लोग के व्यवहार में हम देखे कि ला के बॉडी को घर में रख दिया गया, सब माँ का काम में लग गए। जब खत्म हुआ तो आके फिर घर में सब उनके पास जो पर ऐसे नेसेसिटी था, ऐसे तो उदाहरण ये तो वहां हमको, का इनर लाइफ हुआ। नहीं सुनिए, इसमें तो हम्म, ऐसे उदाहरण हमको जो 3 उन्होंने तरीके बताए, एक तो हम्म, सामान्य जिसको आप सामान्य कहते हैं, जो बिना ड्यूटी हाँ, के मतलब यूं ही जीते हैं। हम्म, कितने लोगों की हमने जीवनी पढ़ी है, और वो हम्म, जैसे वो वकालत कर रहे थे, कोर्ट में थे, उनके पास संदेश आया जी आपकी माताजी नहीं रही, तो भी वो बिल्कुल उसी भाव से अपनी वकालत का काम करते रहे। और जब उनका खत्म हुआ
तब बिल्कुल शांति से गए, तो हम वैसे ही रिएक्ट करें। वही माँ इसमें पैसेज में बाद में कह रही है कि हम माइंड से कौन सी चीज को किस तरीके से लेते हैं। वास्तव में तो देखो, माइंड एक शब्द है, हाँ, पर वास्तव में तो आपका क्या भाव है, आप किस तरीके से कौन सी चीज को लेते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। हो सकता है आप आध्यात्मिक जीवन जी रहे हो, तो भी आपने आसक्ति के उस तरीके के मोमेंट्स हैं, उसमें आपने रोना धोना किया हो, तो भी ये चीज प्रमाणित नहीं करता कि आप आध्यात्मिक जीवन में नहीं हैं। और अगर आप बहुत शांत भाव से हैं, तो भी ये प्रमाणित नहीं कर देता कि आप आध्यात्मिक जीवन के अंदर हैं। ये दोनों ही चीजें, उसका बाहरी एक्सप्रेशन जो है, हाँ थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं कि ये आदमी बिल्कुल इमैच्योर नहीं है, थोड़ा बहुत परिपक्व है। जैसे कि परिवार के अंदर हम देखते हैं कि जिसने बहुत सारे समय और काल खट्टे मीठे देखे हैं, वो थोड़ी सी चीज के सामने बिखर नहीं जाता। तो इतना अवश्य कहा जा सकता है। पर आप जो कह रहे हैं वो उस चीज का प्रमाण हो भी सकता है, पर कोई अचूक प्रमाण हो ऐसी आवश्यकता नहीं है। कि मृत्यु हो जाए तो आप जिस तरीके का सामान्यतः प्रतिक्रिया करते हैं, वो करने से आप आध्यात्मिक जीवन में नहीं हैं, ये भी प्रमाणित नहीं होता। और अगर आप वो नहीं करें तो भी अदरवाइज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो वैल्यूज देखिए, जिस जो अंदर आप हैं। जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण के पास हमेशा, कब, पूरे बचपन से लेके बात तक था। और गीता के समय वो उनसे माफी मांगता है, अरे मैंने तो आपको सखा है, खेल खेल में कितनी कितनी आपने आपको बातें कही होंगी, मेरे को आप उसके लिए क्षमा कीजिए। वो उसको नहीं पहचान सका। वास्तव में तो चेतना है जो दूसरी चीज को पहचानती है। आपके अगर वो नहीं है तो आप बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते। न तो माँ की वाणी को आप जान सकते हैं, न वास्तव में कौन सी चीज में क्या चीज निहित है। श्री अरविंद क्या कहना चाह रहे हैं, आप शब्दों का अर्थ तो बहुत अच्छा लगा लेंगे, कितने व्याख्यान करने वाले लोग हैं, पर वास्तव में अगर गहराई से आप देखें, व्याख्यान सुंदर कर दिया पर जीवन के अंदर अभी भी वो मैं को वरेण्य कर रहे हैं। श्री अरविंद की वाणी को कह के ये सेटिस्फेक्शन है कि मैं कितना अच्छा ये कर रहा हूं, तो वास्तव में क्या वो वफादार है उस वाणी के प्रति, या वही चीज कर रहा है। एक अच्छी दुकान है, आप एक ऐसा अनाज बेच रहे हैं जो ऑर्गेनिक है, जिसमें बस विष नहीं है, बस इतनी बात है, बाकी इससे आपका थोड़ी हो गया वो। तो वास्तव में जो वाणी आप जिसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, वो उतने ही स्तर तक कर सकते हैं। ये जगत भी आपको उतना ही नजर आएगा जिस चेतना के स्तर के ऊपर आप निवास कर रहे हैं। तो आप जो उदाहरण दे रहे हैं वो उसका प्रमाण हो सकता है, और वो उसका प्रमाण न हो, ये भी संभव है। ये दोनों ही चीजें संभव है, क्योंकि ऐसा कह के समस्या क्या है कि जैसे ही हम ये कहते हैं कि इस चीज का ये प्रमाण है, हालांकि गीता कहती है कि समता जो है वो योग का प्रमाण है। समत्व जो आपके अंदर है, पर वो जिस समत्व की बात करती है वो इस समत्व की नहीं है कि आप रोएंगे नहीं। तो माँ को तो क्रोध भी आता था। उनके पास जो सेवा के अंदर लोग थे, वो बताते हैं कि उनकी परफ्यूम की एक बार बोतल टूट गई, तो माँ ने पहले उन्होंने कहा भी माँ आपकी ये टूट गई, तो कुछ नहीं कहा। तो काफी समय बाद में एक बार दोबारा कोई उनकी ऐसी चीज टूट गई, उन्होंने कहा ऐसे लगा जैसे महाकाली स्वयं प्रकट हो गई हो। तो कितने लोगों को के इंसिडेंट्स हमने सुने हैं जहां माँ की सारी क्रियाएं, सारे भाव, जो मनुष्य के हम कहते हैं कि ये सारे रिपू हैं उसके अंदर, जैसे माँ कितना बड़ी, जो उनके बेटे आने वाले थे कितनी जबरदस्त तैयारी के अंदर लग गई थी। दूसरा क्या, देखो इनकी अभी भी आसक्ति है अपने पुत्र के प्रति। तो बाहरी रूप से तो आपको लग सकता है कि माँ के वैसी चीजें हैं। कितने कितने लोग हैं वो हमेशा ही उनको कसौटी के ऊपर उतारते रहते थे कि ये तो जगदम्बा है, थोड़ा सा पाँव को स्क्रैच करके देख लो इनको खून आता है या नहीं आता है प्रणाम के टाइम। वैसा था। तो पढ़े थे कई। तो ये ऐसी सारी चीजें हैं, जब तक हम इस पूरे अकाउंट को अपने ध्यान में नहीं लेते, तब तक हम चीजों को उसके सही परिप्रेक्ष्य में नहीं रख सकते। पर हमारे लिए मुख्य बात इसमें ये कोई भी चीजें नहीं है।
हमारे लिए कसौटी ये है कि अभी कर्म कहाँ से उठ रहा है हमारा, बस भाई हमारे लिए प्रैक्टिकल कसौटी क्या है, यही कसौटी है हमारे लिए। तो ये हम ये देखें कि हमारे कर्म का उत्प्रेरण जो है वो हो कहाँ से रहा है, ऑब्स्टेकल्स क्या है। तो हम इसको यहीं छोड़ सकते हैं। और अगली बार अगर इसमें कोई बात होगी तो लेंगे, नहीं तो हम इसको आगे से शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है भैया। जय श्री जय श्री माँ भैया। जय श्री जय श्री माँ भैया।